contingent liability is against the debt of the firm. In 2024, I searched on YouTube that how to study while struggling with mental health. And for my surprise, I didn't found any good videos at all. Some videos uploaded by foreign creators and I don't relate it with at all. So I wondered that I will make that video, and today here I am making this video. So in this video, I will talk about few realizations that I tried that helped me to study even when I'm struggling with mental health issues. So let's start this point. I have divided the points into 5 points. So watch this video till the end. In the last, I have also told a bonus point. So watch this video till the end. The first point is to stop compare yourself with other people journey. So ये mistake मैंने सबसे ज़्यादा करी थी कि I compared with the people who is scoring good, who is showing up daily. मैं इतना ज़्यादा compare करता था, उस comparison में मैं खुद को बहुत छोटा मान लिया था. But later I have just wondered कि those people who are studying good, who are showing up, are not facing the issues that I am facing. Like I am comparing someone else day 50 journey to my day 0 journey. Someone else who is focused, who has high grasping power, but I don't have. But I am comparing with that person. So this was the biggest mistake, and in that way I pressurized myself a lot, which eventually lead my mental health more worse. So if you're also struggling now, please don't compare your journey with others. It will just make the situation worse. The second thing is to make the flow. सो आई वॉज अ पर्सन जिसको मोटिवेशनल वीडियोस अगर आप दिखा दो ना, मुझे नहीं फर्क पड़ता इतना ज़्यादा, चाहे कितना भी लाउडली वो बोले कि तुम्हें कर रहा है, मुझे नहीं समझ में आता है कि मोटिवेशन में क्या हो रहा है. इफ यू गिव मी कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है, वो सुन के तो मैं और ही नहीं पढ़ पाऊंगा. Then I have wondered with myself that once I have stopped all this mess, motivation, to-do list, planning, goals, ये सारी चीज हटा दी. मैंने सिर्फ सोचा कि मुझे पढ़ना है. I want to study. One lecture, 30 minutes, 40 minutes, 5 minutes, 10 minutes break. नो कल क्या करना है, नो मुझे एक हफ्ते बाद क्या करना है, नो मुझे गोल्स बनाने, कुछ नहीं. जस्ट सिट फॉर स्टडी एंड गेट इनटू द फ्लो स्टेट. सो दिस इज द पॉइंट आई एम टॉकिंग. Go get into the flow state, so you don't have to think about your future, about your anything. Just go with the flow state, because what happens is जब मैं एक बार flow में आ जाता हूँ ना, जब मेरा mind focused हो जाता है, फिर मुझे ये कोई चीज bother नहीं करती है. Then I can easily study like many hours. But अगर आप वो चीज मुझे कह रहे हो कि तुम्हें इतनी देर करना है, सो वो मेरे से नहीं होगा. So if you're also thinking like this, don't plan the things, don't do anything, just sit for study, get idea कि हाँ मेरा ये topic है, मुझे इसको इतनी देर में करना है. That's it. Third point is to do a self talk and just go for out of the home daily. So मेरा एक favorite place था दिन में, वो है garden जाना. Like garden में walk करना, music सुनना, song सुनना, and just get out of your mind. Yes. So when I was struggling with mental health, बट जब मैं डेली खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता था, थोड़ा सेल्फ टॉक करता था, आई हैव अ कंप्लीट डेली रूटीन टू गो फॉर पार्क एंड जस्ट डू अ लाइट वॉक एंड लिसन सॉन्ग्स एंड एनी लाइक समथिंग दैट बूस्ट मी. सब कुछ अच्छा सुनना, कुछ पॉडकास्ट हो गया, कुछ वीडियोस हो गया. एंड ऑनेस्टली दिस वाज द लाइक बेस्ट टाइम ऑफ माई डे. माई होल डे आई वॉज वेटिंग फॉर दैट मोमेंट दैट गिव मी बूस्ट टू सर्वाइव द नेक्स्ट डे. लाइक वो एक छोटा सा सेल्फ टॉक हो गया मेरे साथ, खुद के साथ, और सॉन्ग सुन लिया, पार्क सुन गया, उसमें मेरा माइंड इतना ज़्यादा रिफ्रेश हो जाता है. सो आई गेट एनर्जी टू स्टडी फॉर द नेक्स्ट डेज. सो फाइंड योर सेल्फ एनीथिंग जो आपको करने में अच्छा लगता है. इट्स नॉट अबाउट इट गार्डन, आपको कोई कॉन्टेंट क्रिएशन अच्छा लगता है, आपको कुछ चीज़ ट्राई करना है, आप ऐसा कोई टाइम फिक्स कर दो अपने दिन में कि आपको जो चीज़ अच्छी लगती है वो चीज़ आप करो डेली. इससे आपका माइंड में थोड़ा काम रहेगा एंड यू कैन फोकस, बिकॉज जो चीज़ हमें अच्छी लगती है वो हमें और मोटिवेशनल बूस्ट देती है. फोर्थ थिंग इज टू डोंट प्लान द थिंग्स. मैंने पहले पॉइंट में ये कहा था, व्हाट आई थिंक कि अगर मुझे कोई ऐसा प्लान मिल जाता है ना कि मुझे ये करना है, ये गोल्स बनाने हैं, आई डिडंट वर्क आउट दैट. आई सिंपली सेड कि मुझे पढ़ना है, मुझे पता है ये लेक्चर है मेरा, मुझे इतना पढ़ने का है. इस तरह से हर रोज लाइक डेली आई नॉट थिंक इट ऑल, मुझे यहाँ ये लेक्चर है, मुझे पढ़ना है, एंड स्लोली मैं ऐसे पढ़ते जाता हूँ. एंड इससे क्या होगा, यू जस्ट गेट आउट ऑफ योर फ्यूचर एंजाइटी. एंड ये चीज रिजल्ट भी देती है. लाइक आई नो दैट मैंने अपना सिलेबस को इस तरह से कंप्लीट कर, लाइक आई वाज जस्ट सिंपली स्टडिंग एंड नथिंग, नो ओवर थिंकिंग, नथिंग, जस्ट इन द फ्लो स्टेट. सो डोंट प्लान, डोंट
at all, just study. The fifth point is you have to pass the exam. So as an Indian, हम सबको पता है कि we are either preparing for government exam, either we are in 12th standard or maybe in 10th standard or anywhere. So we have know कि हमें वो चीज पास करनी है. In family, in society, no one will ask कि तुम इसलिए नहीं पढ़ पाए कि तुम्हें मेंटल हेल्थ इशू है. उनको तो पता भी नहीं होगा कि होता क्या है. So एक बात मैं हमेशा क्यों कहता था कि आई हैव टू स्टडी नो मैटर व्हाट, लाइक आई हैव टू क्लियर. यार मैं कितना ही रो लूंगा, अगर मुझे परेशान होना है ठीक है, मैं हो गया, एक दिन रो लिया, 2 दिन रो लिया, तीसरे दिन रो लिया, बट मैं कितना रोऊंगा, किसको फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, मुझे ही फर्क पड़ेगा जब रिजल्ट आएगा, तब गिल्ट होगा, तब प्रेशर होगा. सो इसलिए जस्ट डू अ सेल्फ टॉक कि मुझे बस करना ही है, पढ़ना ही है. अदरवाइज आई डोंट हैव एनी ऑप्शन. आई ऑलवेज लाइक सेइंग माई सेल्फ, मैं नोट्स ऐप पर लिखते रहता था कि विवेक बस इतना ही पढ़ना है, इतना पढ़ना, इतने दिन है, फिर हो जाएगा क्लियर, तुम बाहर आ जाओगे इस एग्जाम से, इस माइंडसेट से. इन दिस वे यू हैव टू स्टडी. जस्ट स्लोली अपने आप को एक रियलाइजेशन देते. द लास्ट एंड द फिफ्थ पॉइंट इज दिस, a YouTube video that I want you to watch if you are also struggling with mental health. So this is the video. This is by creator C. Neha Datta. This is the video she have created at Clear Any Exam. And I must say कि ये वीडियो ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है. I mean I have cleared CA Foundation examination from last attempts and this video is one of the reason that मैं क्लियर कर पाया. इस वीडियो के अंदर उन्होंने वो सारी चीज़ें डिस्कस करी है जो हम फेस कर रहे हैं, स्पेशली मेंटल हेल्थ से. तो जो भी चीज़ें फेस करें लिटरली, इस वीडियो के 3rd या 4th कॉमेंट में किसी ने पूरा एक टाइम स्टैम्प उसने डाल दिया है, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. तो उससे तो और लाइक वीडियो देखने में एंगेजिंग होगी, प्लस कि मुझे ये पॉइंट दिखने हैं. सो आई वांट यू टू स्ट्रांगली सजेस्ट कि इफ यू आर आल्सो स्ट्रगलिंग विद मेंटल हेल्थ, डू वॉच दिस वीडियो. दिस वीडियो विल लिटरली हेल्प you so much. This video will really like connects with you. I don't have any words at all कि मैं इस वीडियो को बताऊं कि आपको ये इसके अंदर है. You will just simply go click on this video. I have description में लिंक दिया है, आपको वहां से मिल जाएगा. और you can study clear any exam. CA Neha Datta. You will find that thumbnail. You will find that video. So watch this video. Definitely get some help from this video. This video is kind of a therapy for you. This video is kind of a therapy. Even if we can't go for it therapy, this video is a therapy. So I strongly suggest you to please watch this video. After this video, you will definitely get help. And last, a very small point is to go for therapy. Yes, ये point मैं बहुत late realize किया था. I always thinking कि therapy लेने में क्या problem आती है, because in Indian family we can't ask parents to go for therapy because we know कि no one like at all कि सबको ऐसा लगता है कि हम माइंड से क्या पागल हो गए. बट इट इज अ वेरी नॉर्मल थिंग कि हमें थोड़ी सी जरूरत है किसी से कुछ कहने के लिए. सो इफ यू आल्सो लाइक फेसिंग एक्सट्रीम इश्यूज, आई विल सजेस्ट कि आप थेरेपी के लिए जाओ इफ यू कैन अफोर्ड इट. अदरवाइज लाइक यू डेफिनेटली शुड वॉच दिस वीडियो एंड जस्ट स्लोली पुश योरसेल्फ, क्योंकि इट्स वेरी हार्ड टू गेट थ्रू द टाइम. बट वंस वी आर इन द फ्लो स्टेट, वंस वी बिल्ड द मोमेंटम, हमें चीजें करनी है. मैं पहले चीजें हो जाती है, आई लिटरली स्ट्रगल्ड मच. But I slowly rebuilding, I slowly studying, I also going for temple daily to just strength, all I also doing self-talk, and in this way slowly I have completed my studies. And yes, again, don't try to complete everything if you're struggling a lot. Just complete what the 20%, like you know 80-20 रूल कि हमारे 20% चीज़ों से ही 80% चीज़ें हो जाती है. आई थिंक दिस इज व्हाट काइंड ऑफ कि हमें इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस करना है, जो चीज़ें हाई वेटेज होती है. इससे आप लोग का एक, क्योंकि हमारा बेस लाइन क्या है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सीए कोर्स, तो उसमें क्या होता है, हमें पास होना होता है, एक वो जरूर होता है. बट किसी और एग्जाम में होता है कि वी हैव टू स्कोर दिस पर्टिकुलर परसेंटेज, सो थिंक अकॉर्डिंगली एंड यू हैव टू लाइक गेट द इनफ मार्क्स. सो उतना पढ़ाई करना है. So in this way, I am still struggling, but I am just learning and getting out of this zone. So if you found this video relatable, so do hit the like button and share your thoughts in the comments. I would definitely suggest to watch this video. You will definitely get help of it. And I just want to say this. Thanks for watching if you are till the here. And just last words that you will surely going to clear that exam that you are thinking to clear. Don't pressurize yourself. Just work consistent, and things will be okay. Thanks for watching again.